kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. So you all know हम सबको नई नई चीज़ें सीखना, उनके बारे में जानना पसंद है. टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है. अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं. तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास. फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी एक पूरी चीज का पार्ट ऑफ अ होल, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. So a fraction is the part of an entire object. So here you can see the first part 1 by 4, that is called 1/4 is blue. Here 4 equal part, out of that 1 is blue. So it is called 1/4 part is blue. Here 4 equal part, out of that 2 are blue. So we'll say 2 by 4. 2/4 are the blue. 1/2 is blue. We can also say 2 by 4 or 1 by 2, that is blue. Here you can see 4 equal part, out of that 3 are not blue. So 3/4 are not blue because here all 4 parts are blue. Clear? So that represent 4 by 4. So यहाँ पे या तो 3 parts को हम कलर कर लें, that will represent 3/4 are blue, और we can say जो unshaded part है या uncolored part है, that shows the 3/4 part. Clear? So now look at the given figure carefully, where some parts are shaded while some are left unshaded. So here you can see 2 parts में divided, out of that 1 is shaded, so that shaded part है वो किसको represent कर रहा है? 1 by 2, and unshaded part is also representing 1 by 2. Here the shaded part represent 3/4 because 4 equal part है, out of that 3 are shaded, तो 3/4, and unshaded part 1/4. Here shaded part is 2 by 3 and unshaded 1 by 3. Clear? So fraction is also considered as the part of collection. किसी whole का या collection का जो part है वो कहलाता है fraction. So to find the 3/4 of the collection of the 16 chocolate, total 16 है, उसका 3/4 find out करना है. So we'll divide 16 chocolate in 4 equal part of 4 each and take 3 such part. It is the obvious. 3 part will have 12 chocolates. So the 16 chocolate equal to 12 chocolates. Fraction consists of the two numbers. The top number, that is called numerator, and the bottom numbers, that is called denominator. Fraction में जो ऊपर वाला part होता है, line के ऊपर वाला, that is called numerator, and line के नीचे वाला part, that is called denominator. Writing fraction in words. Example लेते हैं, write in words. 2 by 3 को हम कैसे लिखेंगे? 2/3, और वी कैन राइट 2/3 और 2/3 और 2 by 3. इस तरीके से लिख सकते हैं. 3/7 है, सो वी कैन राइट 3/7, 3 by 7, 3/7, 3/7 और 3 divided by 7. 7/12 है, वी कैन राइट 7/12. 7/12 वी कैन ऑल्सो राइट, और वी कैन राइट 7 by 12 और 7/12. तो इस तरीके से हम उसे वर्ड्स में लिख सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, उसमें से फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक 3 by 4, 4 by 7, these are proper fraction because here denominator is more than the numerator or numerator is less than the denominator. Clear? So वो proper fraction होगा. Next is improper fraction. In improper fraction the numerator is greater than or equal to the denominator. Improper fraction में जो numerator है वो denominator से या तो बड़ा होगा या उसके equal होगा. That is improper fraction. So 4 by 3, 5 by 4 improper fraction है. Next is like fractions. Fractions having the same denominator, that is called like fractions. For example, 1 by 5, 2 by 5, denominator same है, that means it is like fraction. Unlike fractions,
Fractions having different denominator are called unlike fractions. Like 4 by 7, 5 by 8 unlike fractions हो जाएंगे because denominators are different. Next, unit fraction. Unit means 1. Fraction with the 1 as the numerator, that is called unit fraction. Like 1 by 4, 1 by 5 क्या हो जाएंगे? Unit fraction. अगर numerator देखेंगे दोनों में क्या है? 1. Mixed fraction. Fraction with the combination of whole number and the proper fraction, that is called mixed fraction. Mixed fraction क्या होगा? Combination होगा किसका? Whole part and proper fraction. Like whole part यहाँ पे 2 है, 1 by 3 that is proper fraction. उसका mix होगा. Next is exercise 4.1. Choose the improper fraction from the following. Improper means the numerator will be greater than the denominator. So 8 by 5 is improper fraction. 9 by 7 is improper fraction. तो इस तरीके से आप improper fraction find out करेंगे. Next, write the proper fraction for the following. Proper fraction means numerator is less than denominator. So first one is a proper fraction. Here 2 by 5 is a proper fraction. तो इस तरीके से जितने भी proper fraction है that you will find out. Clear? Next, pick out the unit fraction from the following. Unit means the numerator should be 1. So here 1 by 7 that is a unit fraction, 1 by 3 unit fraction. Next, pick out the like fractions from the following. Like fraction means denominator should be same. So here you can see this, this, this and this. All these are like fraction. Next, write the mixed fraction from the following. Mixed fraction means whole part and proper fraction. So 4 2 by 3 that is a mixed fraction, 5 3 by 4 that is also mixed fraction. इस तरीके से आप mixed fraction लिखेंगे. Next, equivalent fraction. Observe the following figure. So here you can see 2 equal part, out of that 1 is shaded, that will represent 1 by 2. Clear? 4 equal part, out of that 2 are shaded. वो किसको represent करेगा? 2 by 4 को. Next, you can see that will represent 3 by 6 and it will represent 7 by 14. So in all the above figure, it is observed that all the fraction indicate the same part of the whole. वो same part को show कर रहे हैं which are shaded. So the value of the fraction 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 7 by 14, all these fractions are called equivalent fraction because वो same part को represent कर रहे हैं. Clear? Next, property of equivalent fractions. If two fractions are equivalent, अगर equivalent है तो क्या होगा? न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड. तो अब हम फाइंड करेंगे किस तरीके से हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. वी हैव जस्ट सीन 1 by 2, 2 by 4, 4 by 8 that is equivalent fractions. If we observe carefully, we can see that if we multiply the numerator denominator by of 1 by 2 by 2, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, विल गेट 2 by 4. दैट इज if we divide the numerator and denominator of 4 by 8 by 2 will get 2 by 4. या तो हम सेम नंबर को से मल्टीप्लाई कर लें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, both the numerator and denominator. So the method to find out the equivalent fraction of the given fraction are as follow. To find the equivalent fraction, multiply the numerator and denominator of the fraction by same non-zero number. या तो same non-zero number से numerator and denominator को multiply कर लो और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर लो. इन बोथ केस यू विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर? इन ऑर्डर टू गेट द मोर देन वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, वी कैन बिल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थ्रू द मल्टीपल्स. कैसे? टू डू सो वी फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू अरेंज इन द फ्रैक्शन. एग्जाम्पल से समझते हैं. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1 by 3. सो 1 by 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो व्हाट विल डू? We'll multiply both the numerator and denominator by 2, we'll get 2 by 6. So 2 by 6 and 1 by 3 that are equivalent fractions. Next example, write 3 fraction equivalent to 5 by 7. 3 लिखना है तो first 2 से multiply कर लेंगे numerator and denominator को, then 3 से, then 4 से. So we'll get the equivalent fraction like 5 by 7, 10 by 14, 15 by 21, 20 upon 28. All these are equivalent fraction. Next, write equivalent fractions of 4, 1 by 4 with the numerator 4. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? न्यूमरेटर को 4 रखना है. So first to find the multiples of numerator 4, now we'll multiply the numerator and denominator by 4. दोनों से करेंगे तो 4 से multiply ऊपर नीचे करेंगे, we'll get 4 by 16. Clear? Next, verification of two given fractions as the equivalent fraction.
कैसे वेरीफाई करेंगे? टू फ्रैक्शन, सपोज a अपॉन b एंड c अपॉन d है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा? a इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू b इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इक्वल है दैट मीन्स दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वलेंट और नॉट। 2/5 एंड 16, 6/15। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So 2 into 15 that is 30 and 5 into 6 that is 30. That means they are equivalent fractions. Clear? ये क्या हो जाएंगे? Equivalent fraction. इसी तरीके से आप बाकी सब में भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। इफ द प्रोडक्ट इज सेम दैट मीन्स दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है सेम नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वलेंट। Next, exercise 4.2. Find an equivalent fractions of the following by division. Division से find out करना है 9/18. So what we'll do? We'll divide both by 3. 3 3s are 9 and 6. 3/6. Clear? तो इस तरीके से आप find out करेंगे. Next, find the equivalent fraction of following by multiplication. 1/8. So we'll multiply by 2. Both the numerator and denominator. So 2/16. That is the equivalent fraction. Clear? Next, check whether the pair of fractions given below are equivalent or not. तो हमें चेक करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 into 12 24 and 8 into 3 24. That means they are equivalent fractions. तो इस तरीके से आप बाकी सब के लिए चेक करेंगे. Next, build next 4 equivalent fractions of the following fractions. So 6/9. पहले हम 2 से कर लेते हैं. So that is 12 and 18. Then 3 से कर लेंगे 18 27. Clear? 4 से कर लेंगे 24 36. Clear? इसी तरीके से 5 से कर लेंगे 30 45. So this way you can find out. Clear? Next, improper fraction and mixed fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें पता है क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। इन द फ्रैक्शन 4/3, 9/7, 11/8 एंड 12/12। दैट इज ऑब्जर्व दैट द न्यूमरेटर ऑफ फैक्टर इधर या तो इसके इक्वल हो या उससे ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू द न्यूमरेटर दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन. Beside these two type of fraction, there is a fraction which there is a whole number जिसमें एक whole number भी होगा और एक proper fraction भी होगा. Suppose we write 3 plus 1/5 in a combined form. तो हम किस तरीके से लिखेंगे? 3 1/5 इस तरीके से लिखेंगे combined form में. So this type of fraction is called mixed fraction. इसमें एक whole part होगा like here. 4 whole part and 1/2 that is a proper fraction. So 4 1/2, 3 1/7, 8 5/9 all these are examples of mixed fraction. A fraction which consists of the whole number and improper fraction that is called mixed fraction. Clear? यहाँ पे क्या होगा? एक whole part होगा और एक proper fraction that is called the mixed fraction. Clear? Next, expressing an improper fraction as a whole number. अब हम improper fraction को whole number में कैसे represent करेंगे? To express the improper fraction as a whole number, we divide the numerator by the denominator. Like एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव टू एक्सेस 15/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन होल नंबर. तो हम क्या करेंगे? 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 5. सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट improper fraction into whole number. Next, expressing a mixed fraction as an improper fraction. So उसके लिए क्या करेंगे? Step 1, multiply the denominator of the fraction part to the whole part. Denominator को whole part से multiply करेंगे and numerator उसमें add कर देंगे. Clear? The sum of the step 2 will be the numerator of the new fraction और denominator will be the same, जो denominator था वही रहेगा. Example लेते हैं, to convert 1 2/3 into improper fraction. So ये mixed fraction है. कैसे करेंगे? पहले 3 into 1 करेंगे, डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 आ गया एंड विल ऐड द न्यूमरेटर. 2 ऐड कर देंगे, 5 हो गया एंड डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 5/3.
So that is the improper fraction. Next, expressing an improper fraction into mixed fraction. Now we'll learn how to convert improper fraction into mixed fraction. उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. कोशिएंट ऑफ द डिवीजन फ्रॉम द स्टेप 1 विल बी द होल पार्ट ऑफ न्यू फ्रैक्शन. जो हमारा रिमाइंडर होगा दैट विल बी द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवाइजर दैट विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. टू अंडरस्टैंड लेट अस कंसीडर द मिक्स फ्रैक्शन 13/2. इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो हम क्या करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 12 1. सो 6 जो हमारा क्वोशिएंट है दैट इज द होल पार्ट. 1 रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा एंड डिवाइजर 2 दैट विल बिकम आर डिनोमिनेटर. क्लियर. नेक्स्ट, फ्रैक्शन इन इट लोएस्ट फॉर्म. अ कॉमन फ्रैक्शन in the lowest term or in the simplest form when the only common factor between the numerator and denominator is 1. मीन्स अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड कर दे तो वो लोएस्ट फॉर्म में होंगे. मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा. फॉलो द स्टेप टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म. फाइंड द कॉमन फैक्टर और HCF न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. HCF फाइंड आउट करेंगे एंड हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड कर देंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. रिड्यूस 14/28 इन लोएस्ट फॉर्म. सबसे पहले हमने क्या किया, फैक्टर फाइंड आउट किए एंड उससे हमने HCF फाइंड आउट किया. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 14 और 28 का, दैट वाज 14. सो सोल्यूशन, सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट किए 14 के एंड देन 28 के. कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 7 एंड 14. 2 से डिवाइड किया विल गेट 7/14. 7/14 लोएस्ट टर्म नहीं है तो अगेन हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया विल गेट 2/4. दैट इज ऑल्सो नॉट द लोएस्ट फॉर्म. 2 से डिवाइड किया विल गेट 1/2. सिंस 1 and 4 आर को प्राइम नंबर, सो 1/2 क्या हो जाएगी, लोएस्ट फॉर्म ऑफ 14 and 28. सो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी HCF है दैट इज 14. 14 से दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे सो विल गेट 1/2. दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन. नेक्स्ट, मेंटल मैथ्स. Reduce the following in lowest form. So 64 and 80 को हमें lowest term में. So first we'll find out the HCF of 64 and 80. That is 16. 16 से divide करेंगे दोनों नंबर को तो क्या आ जाएगा, 4/5. Clear? That is the lowest term. Next, comparison of unlike fraction. If the denominator of two fractions are the same, the fraction with the लार्जेस्ट न्यूमरेटर इज द लार्जर फ्रैक्शन. अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी. फॉर एग्जांपल 3/5 एंड 7/5. सो बोथ आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर 5. सो विल चेक द न्यूमरेटर. जिसका भी न्यूमरेटर लाइक 7 इज ग्रेटर देन 3 तो 7/5 विल बी ग्रेटर देन 3/5 और 3/5 विल बी लेस देन 7/5. सेम वे 13/15 विल बी ग्रेटर देन 11/15. नाउ लेट अस कंपेयर टू फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो कैसे कंपेयर करेंगे, व्हेन द टू फ्रैक्शंस हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर वी कन्वर्ट देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग द कॉमन डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे. फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. सपोज वी हैव टू कंपेयर 1/4 एंड 2/3. नाउ डिनोमिनेटर आर 4 and 3. सबसे पहले हम 4 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सो दैट इज 12. नाउ क्या करेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर बोथ द डिनोमिनेटर 12. हमें दोनों का डिनोमिनेटर 12 करना है. सो क्या करेंगे, हम 12 को, फर्स्ट का डिनोमिनेटर कितना था 4, अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3. सो हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12. सेम वे अगर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे विल गेट 4. तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 8/12. नाउ डिनोमिनेटर आर सेम. So fraction with the greater numerator will be greater. So 8/12 will be greater than 3/12. Clear? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं 2/3 will be greater than 1/4. Next, ascending and descending order fraction. Arranging like fractions with the equal denominator. So in the fraction having the same denominator, the fraction with the greater numerator will be greater fraction. Clear? So हमें यहाँ अरेंज करना है 1/7, 6/7, 4/7 and 2/7 को. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग, तो सबसे
जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा. सो सबसे पहले आ जाएगा 1/7, देन 2/7, देन 4/7, देन 6/7. दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 6/7, 4/7, 2/7 एंड 1/7. नेक्स्ट, arranging unlike fractions with the equal numerator. If there are 3 or more fractions having the same numerator, अगर numerator same है, they may be arranged in ascending or descending order. कैसे? The order will be the opposite order of denominator. The bigger the denominator will be the smaller. जितना उनका denominator बड़ा होगा उतनी ही उनकी वैल्यू कम होगी. Like 3/4, 3 parts out of 4, 3/6, 3 part out of 6 part, 3/8, 3 part out of 8 part. तो अगर न्यूमरेटर सेम है, लाइक हियर 3/4, 3/6 और 3/8 की बात करें, न्यूमरेटर सेम है, 3 है, सो जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी. सो 3/4 एंड देन 3/6 सबसे बड़ा हो जाएगा 3/4, देन 3/6 एंड देन 3/8. क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं. अरेंज 5/8, 5/9, 5/7 एंड 5/10 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर जिसका भी जो डिनोमिनेटर होगा सबसे कम होगा वो ग्रेटर होगा, है ना. सो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग मीन स्मॉल टू बिग. तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 5/10, देन 5/9, 5/8, 5/7. दैट इज असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग इसका रिवर्स हो जाएगा 5/7, 5/8, 5/9, 5/10. क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या चेक करेंगे? न्यूमरेटर. क्लियर? जिसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द ग्रेटर. सो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग. सो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/11, 4/11, 6/11, 7/11 एंड 9/11. क्लियर? दैट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर. इसी तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट, अरेंज अनलाइक फ्रैक्शंस विद द अनइक्वल न्यूमरेटर. अगर जो न्यूमरेटर है अनइक्वल हो तो कैसे करेंगे? कंसीडर 2 अनलाइक फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट numerator. The fraction have to be converted into their equivalent fraction with the common denominator in order to compare them. Suppose we have to arrange 4/7, 3/5, 9/10 in ascending and descending order. So denominator पहले हमें same करना पड़ेगा by taking the LCM. So what we'll do? We'll take the LCM of 7, 5 and 10. जितने भी denominator है 7, 5 and 10 का LCM लेंगे. So LCM is 70. Clear? अब हम इसको equivalent fraction में जिसका denominator same है उसमें change करेंगे. सो 4/7 को हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 40/70 ये हो जाएगा 42/70, 63/70. नाउ डिनोमिनेटर सेम, सो विल कंपेयर द न्यूमरेटर. जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा 40/70, 42/70 एंड 63/70. डिसेंडिंग इसका रिवर्स हो जाएगा 63/70, 42/70 एंड 40/70. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.3. Reduce the following fraction into their lowest term. 7/35. So 7/35 अगर हम SCF फाइंड आउट करें दैट इज 7. सो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/5. दैट इज द लोएस्ट टर्म. क्लियर? तो इस तरीके से हमें सारे फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में चेंज करना है. नेक्स्ट, सर्कल द फ्रैक्शन इन इट लोएस्ट टर्म. सो 2/11, 2 और 11 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. सो दैट इज द लोएस्ट टर्म. Clear? Next, change the following improper fraction into whole numbers. So whole number में convert करने के लिए हम क्या करेंगे? Divide करेंगे by denominator. 54 को हम divide करेंगे 9 से तो we'll get 6. Clear? Next, reduce the fraction into lowest term in each of the following. So 18 और 27 को हमने 9 से divide किया. 9 2 ज़ा 18, 2/3. Clear? Express the following mixed fraction as improper fraction. Mixed fraction को improper में change करना है. So 8 into 2 16 and 117/8. Clear? Next is arrange the following in ascending order. So ascending order fraction हमारे 2/3, 3/4, 5/6, 4/8 and 11/12. So first हमें क्या करना पड़ेगा? LCM लेना पड़ेगा. 3, 4, 6, 8 and 12 का LCM हो जाएगा 24. नाउ 24 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा होता है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/24.
देन 6 से करेंगे 18/24, 20/24 हो जाएगा। देन 3 से कर लेंगे 12/24 एंड 22/24। नाउ डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, फिर कंपेयर द न्यूमरेटर। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, दैट इज 12/24, देन 16/24, देन 18/24, 20/24 एंड 22/24। क्लियर? सो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम वे यहाँ पे भी हम 11, 2, 4, 3 एंड 7 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, बिग टू स्मॉल के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसी तरीके से एलसीएम लेंगे एंड डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड देन विल कंपेयर एंड अरेंज देम। नेक्स्ट, put the greater than, less than or equal sign without changing into equivalent fraction. Apply the rules you have learned so far. So here 5/12 and 5/11 denominator are different, 12 और 11 है, न्यूमरेटर आर सेम। सो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू कम होगी। सो दैट मीन्स 5/12 इज लेस देन 5/11। क्लियर? नेक्स्ट इज कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 9/10 एंड 7/8। सो हमें कंपेयर करना है, तो किस तरीके से करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। सो 9 into 8 72 and that is 70. That means 9/10 will be greater than, जिसका भी इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है इससे, that means 9/10 is greater than 7/8. क्लियर? सो इस मेथड का भी यूज करके हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 55/8। सो 55 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 48 सबट्रैक्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 15 एंड 4 7 6 7/8। Clear? Next, addition and subtraction of the fraction. To add two fraction with the same denominator, add the numerator and place the sum over the common denominator. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे एंड कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे। सो सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन दैट इज सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। टू सब्ट्रैक्ट द टू फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। क्लियर? In order to understand, look at the following example. Suppose we have to add 4/12 and 7/12. Denominator same है तो simply हम numerator को add कर देंगे 7 plus 4/12, that is 11/12. Now subtract करना है 2/7 from 3/7. So 3/7 minus 2/7, 3 minus 2/7 हो जाएगा, that is equals to 1/7. For unlike fraction, unlike fraction में कैसे करेंगे, the step follow to add or subtract two or more fractions are as under. सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का जो unlike fraction है, express each fraction into its equivalent like fractions with the equal denominator as LCM. Add or subtract fraction obtained in step 2. Example लेते हैं, find the sum of 3/16 and 5/8. For that, what we'll do? डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16। नाउ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर देंगे। सो ये हो जाएगा 3/16 तो ऑलरेडी था, ये हो जाएगा 16 को डिवाइड करेंगे 8 से 2 आएगा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 12/16। नाउ डिनोमिनेटर सेम तो हम सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 3 + 10/16 दैट 13/16। क्लियर? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, 3/4, 1/2 एंड 5/12 है। सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो गए, सिंपली एट द न्यूमरेटर एंड राइट द कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आएगा 20/12। नाउ 20/12 दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हमेशा हम इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 2/3।
क्लियर। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, फाइंड 11/6 माइनस 9/8। सेम वे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 6 और 8 का। क्लियर, सो दैट इज 24। नाउ डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सो दैट इज 44/24 एंड 27/24। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 44 माइनस 27/24 हो जाएगा, दैट इज 17/24। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर मिक्स फ्रैक्शन, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द मिक्स फ्रैक्शन रीड द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे एंड प्रोसीड एज डिस्कस अबव फॉर द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। टू अंडरस्टैंड लुक इनटू द फॉलोइंग। हमें ऐड करना है 3 3/4 एंड 4 1/4। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे हम 3 3/4 को, 4 3 से 12 एंड 3 15/4 एंड दिस इज 17/4। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32/4, दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर। अगर हमें 2 1/3 3 1/4 ऐड करना है, सेम वे, सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लाइक हियर, ऐड करने के बाद हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो पहले हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, दैट इज 12। नाउ डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम, ये हो जाएगा 28/12 एंड 39/12। नाउ डिनोमिनेटर सेम, तो सिंपली विल ऐड द न्यूमरेटर एंड राइट द कॉमन डिनोमिनेटर 67/24, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सिंप्लीफाई 5 1/2 माइनस 3 3/10 प्लस 4 1/5। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 26/5 माइनस 33/10 प्लस 21/5। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5 10 और 5। सो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम दैट इज 10। अब हम क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा 52/10 माइनस 33/10 प्लस 42/10। नाउ 10 हमारा जो है कॉमन है, डिनोमिनेटर सबका एक जैसा है, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है 52, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, देन 33 एंड देन 42, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उसमें से 33 माइनस हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 61/10। 61/10 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स में चेंज करेंगे, 6 1/10, दैट इज आवर आंसर। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इन अ कॉन्टेस्ट हाई जंप, आकाश जंप 2 3/5 मीटर एंड विनर जंप 2 मीटर, हु मेड द हायर जंप एंड बाय हाउ मच। हमें बताना है कि किसने ज़्यादा हाई जंप किया और कितना। सबसे पहले हम इसको करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज, तो ये हो जाएगा 13/5 मीटर एंड दैट इज 8/3 मीटर। अब हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे हम 5 और 3 का 15 हो जाएगा। नाउ इसको हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ये हो जाएगा 40/15 एंड 39/15। सो 40/15 इज ग्रेटर देन 39/15। अब कितना ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या पता चला कि विनय जंप हायर देन आकाश, पर कितना, सो 40 माइनस 15 माइनस 39/15 करेंगे, दैट इज 1/15 मीटर। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अ मैन गेव 1/2 ऑफ हिज सेविंग टू हिज एल्डेस्ट सन। अपनी जितनी भी सेविंग था उसका 1 पार्ट उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया। ही गेव 1/2 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज डॉटर एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू चैरिटेबल। अब जितना बचा था उसका 1/2 उसने अपनी डॉटर को दिया और बाकी के जो बचा था उसका 1/3 चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दिया। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सेविंग इज लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितना बचा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही गेव द एल्डेस्ट सन 1/2 ऑफ द सेविंग, तो कितना बच गया, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 बच गया। अब 1/2 का उसने हाफ क्या किया है, 1/2 का जो 1/2 है उसने अपनी डॉटर को दे दिया, तो कितना दे दिया, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। क्लियर। अब कितना बच गया है, सो 1/4 में से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, वही डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमें आ गया 1/4। अब उसने क्या किया है, इसका जो 1/3 पार्ट है वो उसने चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया है, तो हम इसका 1/3 पार्ट निकालेंगे, सो 1/4 इंटू 1/3 करेंगे, दैट इज 1/12। क्लियर। मीन्स 1/12 पार्ट उसने चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया है। तो अब कितना बच गया है,
1/4 माइनस 1/12 किया तो ये आ जाएगा 1/6. सो 1/6 पार्ट उसके पास अभी बचा है. क्लियर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4. हमें ऐड करना है 1 1/2 एंड 2 1/4. क्लियर. मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 2 1s are 2 एंड 3/2 प्लस 9/4. एलसीएम सेम करेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम. सो ये हो जाएगा 3 2s are 6 एंड 2 2s are 4 एंड प्लस 9/4. 6 प्लस 9 15/4. दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको मिक्स में चेंज करेंगे. 4 3s are 12. Clear? That is our answer. Next, solve 7/6 minus 3/4. 7/6 minus 3/4. So LCM लेंगे. LCM क्या आ जाएगा? 6 और 4 का 12. 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2. 2 into 7 14 माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3. 3 into 3 9. सो दैट इज 5/12. क्लियर. तो इस तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. 5/8 माइनस 3/10 प्लस 3/4. सो 5/8 माइनस 3/10 प्लस 3/4. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम क्या आएगा? 40. So 40 divided by 8, that is 5. 5 5s are 25 minus ये हो जाएगा 4. 4 3s are 12 plus 30. So 30 plus 25 कितना हो जाएगा? 30. 55 minus 12 upon 40. So that is equals to 3 4. 43 upon 40. Now ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में चेंज करेंगे. 1 3/40. क्लियर. क्वेश्चन 4. Suniti bought a watermelon of 7 1/3 kg. She distributed 5 1/2 kg to family member. Find the weight of watermelon left with her. तो टोटल जो वेट था कितना था? 7 3s are 20. 1 and 2 22 upon 3. उसमें से फैमिली मेम्बर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 5 2s are 10 and 1 11/2. ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एलसीएम लेंगे. 6 44 माइनस 33 दैट इज 11/6. इसको हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में. दैट इज द वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विद हर. क्लियर. तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. हियर वी एंड द चैप्टर. आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया है. नाउ यू टू प्रैक्टिस इट.